So students, let's start explanation of chapter first. What is democracy? Why democracy? We will start from a simple definition. That is, democracy is a form of government in which rulers are elected by people. So easy definition is this. तो democracy कैसा form of government है जहाँ पे rulers को कौन elect करता है? People. So it is a form of government in which rulers are elected by people. We will learn this through with the help of example. In Myanmar, there is a rule of military sector, and in Chile, the dictator Pinochet is not been elected by the people. Next one, the country is Nepal. The kings of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do, but because they have to be born into a royal family. तो अलग अलग यहाँ पे देखा, म्यांमार में कौन सा रूल है? मिलिट्री रूल. चाइल्ड में डिक्टेटरशिप है और नेपाल में हेरिडिटरी सिस्टम है. The members of the royal family became the rulers. तो तीनों कंट्रीज में आपने देखा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है और यहाँ के रूलर्स को पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है. तो डेमोक्रेटिक कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स को चूज करते हैं पीपल. This can be better understood in the way of features of democracy. The first feature is the rulers are elected by the people. So who are electing the rulers? People. Second, free and competitive elections are held. In a democratic form of government, free elections are held. There is no restriction of any party, any form of government. Free elections are held over here. Each adult, irrespective of religion, education, caste, color, wealth, have one vote, one value. So there is a universal adult franchise. Every person of the country can give vote. The elected rulers take decisions within limits set by constitutional laws and citizens' rights. तो यहाँ पे elected rulers जिसको elect कर लिया गया वो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अकॉर्डिंग. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेते हैं. रूल ऑफ लॉ मींस रूल किसके अकॉर्डिंग है? लॉ के अकॉर्डिंग. द राइट्स ऑफ द सिटीजंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो राइट सिटीजंस को मिली हुई है वो उनको मिलनी चाहिए. दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजंस की जो राइट मिली हुई है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. In a democratic form of government, that should be independent judiciary. A judiciary system should be that on which there should not be restrictions of any political party. किसी भी political party, किसी industry के कोई restrictions नहीं होनी चाहिए. ऐसा judiciary system होना चाहिए जहाँ पे independently decision लिए जा सके. Next topic is major decisions by elected leaders. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and became president of the country. So in Pakistan, earlier there was democratic form of government, but in October 1999, they led a military coup, means military attack हो गया और उसके बाद में वहाँ के रूलर कौन बन गए? जनरल परवेज मुशर्रफ. और उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर लिया और बाद में उनको क्या कहा जाने लग गया? प्रेसिडेंट. इन अक्टूबर 2002 he held a referendum. रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत. अकॉर्डिंग टू इट एक वोट की तरह होता है जनरल टेम्पररी इलेक्शन और इसमें जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं ना उनसे सिर्फ यस और नो ये प्रेफरेंस ली जाती है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ एक अच्छे लीडर हैं, वो आगे रूल कर सकते हैं. तो इसका आंसर उनको किस में देना होगा? यस या नो में. तो ऐसा रेफरेंडम हुआ था 2002 में. इन द कंट्री विच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. तो ऐसा रेफरेंडम तो हुआ, कहा तो जाता है कि टेम्पररी इलेक्शन हुए, सिटीजन्स के डिसीजन लिए गए थे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था. किस पे बेस्ड था ये? माल प्रैक्टिसेस मतलब फ्रॉड्स. और इन सब के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रेफरेंडम करवाया था उनको 5-year एक्सटेंशन मिल गया, मतलब आगे भी वो 5 साल तक रूल कर सकते थे. आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर
which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies. Elections were held to the national and provincial assemblies. कि अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करवा दिए, एक उन्होंने ऑर्डर लॉ पास करवा दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है उनको वो डिसमिस कर सकते हैं, और जो अब दोबारा से इलेक्शन होंगे नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में। पर यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग अब जो ये मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे ना यहाँ पे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, ये अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकती। इनको वही डिसीजन लास्ट टाइम मानना पड़ेगा कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, मेंबर्स को तो इलेक्ट किए गए हैं, लेकिन इनको डिसीजन वही मानने पड़ेंगे जो जनरल परवेज मुशर्रफ कहेंगे। इन दिस केस पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, तो यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज सम पावर्स, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, इनके पास अभी कुछ पावर्स है, बट द पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर। लेकिन लास्ट में पावर किसके पास में है? मिलिट्री ऑफिसर और जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ उनके पास है। तो क्या इस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। चाइना में इलेक्शंस हमेशा होते हैं, हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। इंडिया में भी 5 years बाद में होते हैं, वहां पर भी होते हैं। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो वहाँ के इलेक्शन किसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए होता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और ये वहाँ की पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। कि कोई भी अगर पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे अप्रूवल किसका लेना होगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि चाइना में कौन सा सिस्टम है? 1 party सिस्टम। तो सबसे पहले इस पार्टी का परमिशन लेना होगा। The government is always formed by the Communist Party। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है हमेशा कौन सी पार्टी की बनती है? The Communist Party। Now I will tell you about Mexico. Mexico got independence in 1930, and after 1930 Mexico holds election after every 6 years। हर 6 years में इलेक्शंस होते हैं, और किसको इलेक्ट करने के लिए? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। बट until 2000 तक every election was won by the party called PRI। हमेशा 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी ने वहां पे इलेक्शन जीते हैं, जिसे इस पार्टी का नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। Opposition party did contest elections but never managed to win, as PRI was known to use many dirty tricks to win election। Opposition parties भी है वहां पे मेक्सिको में और इलेक्शन लड़ते भी हैं, पर वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाए इलेक्शन जीतने में, हमेशा उनकी हार हो जाती है, क्योंकि PRI कई डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए, कई मेथड्स यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे all those who were employed in government offices had to attend its party meeting। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां पे हैं मेक्सिको के अंदर, उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी होती है। जो वहां के टीचर्स है वो पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि सिर्फ PRI जो पार्टी है उसी को ही वोट करना है, और वहां की जो मीडिया है वो हमेशा अपोजिशन पार्टीज चाहे कितना भी अच्छा वर्क करे उसका प्रेज नहीं करती, उसकी तारीफ नहीं करती, हमेशा अच्छाइयां किसकी दिखाती है? PRI पार्टी की, बिकॉज इट इज फंडेड बाय द PRI पार्टी। एंड समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार क्या होता है, जो पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट देने के लिए जाना है वो जब वोट देने का टाइम आता है इमीडिएटली उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से कई डर्टी मेथड्स वो यूज करते हैं इलेक्शंस विन करने के लिए। बोथ द केसेस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो दोनों केसेस को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं पर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर वे। जो हमारा टॉपिक था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्शंस नहीं हो रहे। A democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a free chance of losing। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो प्रेजेंटली रूल कर रहे हैं
वो सही तरीके से इलेक्शन कराएं और उनके चांसेस होने चाहिए कि वो हार भी सकते हैं, ये नहीं है कि वो हमेशा जीतते ही जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं दी जाती वोटिंग। इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. तो वहाँ पे भी ऐसे एस्टोनिया में ऐसे रूल्स फ्रेम किए गए जिसके वजह से जो रशियन माइनॉरिटी के पर्सन्स है उनको बहुत मुश्किल आती है राइट टू वोट नहीं दे सकते। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than the Indian Fijian. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है फिजी कंट्री में कि इंडिजीनियस फिजी जो है वहाँ के लोकल जो फिजी है उनकी तो वोट की ज्यादा वैल्यू होती है rather than Indian Fijian. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो वहाँ पे वही होगा ना जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज राइट मिलती और हर एक सिटीजन के वोट की वैल्यू हो, इक्वल वैल्यू हो सभी की वोट की। नेक्स्ट टॉपिक इज rule of law and respect for rights. Since independence, means since 1980, Zimbabwe is ruled by ZANU-PF. Its ruler, Robert Mugabe, has been ruling the country. He is popular but also used unfair practices in election. ये लीडर बहुत पॉपुलर है और इलेक्शन में जीते हैं और 1980 के बाद में इन्होंने ही रूल किया है जिम्बाब्वे में। तो ये इलेक्शन बट क्या है कि ये बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। जैसे पहले हमने कई कंट्रीज के एग्जांपल में देखा है, मेक्सिको में देखा है, ऐसे यहाँ पे भी होता है। इलेक्शंस हैज बीन रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। यहाँ पे इलेक्शंस हमेशा होते हैं और हमेशा कौन जीतता है, यही पार्टी जीतती है, ZANU-PF पार्टी। अपोजिशन पार्टी वोटर्स आर हैरेस्ड and their meetings disrupted. अपोजिंग पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, जो दूसरे पार्टी के वर्कर्स, उनको हरेस्ट परेशान किया जाता है। उनकी मीटिंग्स जब वो लेते हैं तब से वहां से हटा दिया जाता है पर्सन्स को। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को इलीगल डिक्लेयर कर रखा है कि ऐसा वो कर ही नहीं सकते। तो जब से रॉबर्ट मगैब वहाँ के रूलर बने हैं, उन्होंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं और जो पीपल्स के राइट है उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वही काम करते हैं जो उनको सही लगता है। वहाँ पे वैसे तो टेलीविजन न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट है, पर न्यूज़पेपर और टेलीविजन से वही शो किया जाता है जो ये पार्टी अच्छा करती है और इनके अगेंस्ट कुछ भी टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स में नहीं दिखाया जा सकता। न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हो सकता और टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे कई तरीके के ऐसे माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज होते हैं। यहाँ पे देयर इज एन लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऐसे लॉ भी है इस कंट्री के अंदर कि अगर प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किए तो सिटीजन्स के जो राइट है उनसे छीन लिए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। Both these aspects give us fourth and final feature of democracy. तो ये सारे हमने कोई एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल्स देखे कह सकते हैं कि इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदिन लिमिट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कौन सी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है और जिस कंट्रीज में सिटीजन्स को राइट्स होती है, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, तो वही होती है डेमोक्रेटिक कंट्री। Hope that you have understood this topic. Now, thank you.